Yes, good morning, students. This is chapter number fifth, Indigo from Flamingo book, and in this chapter is an extract from the book The Life of Mahatma Gandhi, and this book is considered the best books ever written on Gandhiji by Times Educational Supplement. You can see here it is written. Now, if we start the chapter, you will see that this chapter shows the light how Gandhiji got triumph, very first triumph in India, and you know that Gandhiji started four satyagrahas. First one was in Champaran. So this chapter deals with the Champaran incident, Champaran story, what happened and what did Gandhiji did for the Champaran farmers. The story starts when Gandhiji was in a National Congress session that held in 1916 in लखनऊ. वो याद करते हैं कि in this session he met a person named Rajkumar Sukla who came from Champaran, and he invited Gandhiji to come to Champaran to help the peasants who were working as an indigo farmers as sharecroppers there. Now we will see here that first Gandhiji was not ready to give any appointment, but later on when he saw the tenacity of the sharecropper of the farmer, so he told that yes, he will be available in Calcutta on such and such date and come there, and then he will go with him. When months passed, Gandhiji went there in Calcutta. He found Sukla waiting him. After that, Gandhiji went away from Calcutta with Sukla. First, they went to Rajendra Prasad, who later became the president of the Congress Party and India. When they went to Rajendra house, the servant of Rajendra Prasad thought that Gandhiji was a yeoman, means farmer hai, and the servant did not allow Gandhiji and Rajkumar Sukla to get some water from the well. Actually, on that day, Rajendra Prasad was not at his house. First, Gandhiji decided to go to Muzaffarpur, which was en route to Champaran. You know that both Rajkumar Sukla and Gandhiji was going to Champaran, but Gandhiji decided to go to Muzaffarpur because it was en route to Champaran to obtain more complete information about the condition the farmer were facing there in Champaran. So he accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani, who was the a professor of arts if in arts college in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Santiniketan school. Then Gandhiji arrived at night there in Muzaffarpur, 15 April 1917. Sorry, Kriplani was waiting at the station. There, Gandhiji stayed at Malkani, at the house of Professor Malkani, a teacher in government school. He was extraordinary thing in those days. In those days क्या था बच्चों कि people afraid to give any support to these people who were advocating of home rule, like Gandhiji was advocating home rule. So people were afraid to give any shelter
to offer any shelter at their houses because they had a fear of the Britishers. So this was the problem the people were facing, but here Malkani allowed Gandhi ji to stay at his house. अब गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंच गए हैं, ये न्यूज़ किसानों में फैल गई, तो किसान सब अपने अपने प्रॉब्लम्स लेके आने लगे। वो शेयर क्रॉपर्स थे, वो सब आने लगे। उनके साथ साथ लॉयर्स भी आए और गांधी जी ने उनको बुलाया ब्रीफ करने के लिए कि भाई कुछ इन्फॉर्मेशन दो जिससे कि वो शेयर क्रॉपर्स की बात को रख सकें। यहाँ पे हम देखते हैं कि गांधी जी ने लॉयर्स को डांटा भी कि वाई दे वर आस्किंग फीस फ्रॉम द फार्मर, से फ़ीस क्यों ले रहे हैं हम। उन्होंने कहा कि देखो मैं आउटसाइडर हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ इन लोगों की हेल्प करने के लिए, तो वाई दे आर नॉट हेल्पिंग दीज फार्मर्स विदाउट गेटिंग एनी फीस। उसने ये भी कहा कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि वी शुड नॉट पुट the cases of these farmer in the court because this is just wastage of money and the farmers will not get anything in the court. And student ki most of the arable land चंपारण की was divided into large states में divide थी वो। उन स्टेट्स के मालिक इंग्लिश मैन थे एंड इंडियंस वर द लेबरर्स, दे हैव टू डू वर्क, दे वर टीनेंट थे, वो टीनेंट थे। अब द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो एंड लैंडलॉर्ड कंपेल्ड ऑल द टीनेंट्स टू प्लांट 3, 12 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो। मीन्स टोटल लैंड के 15% पे वो इंडिगो गाएं और टोटल प्रोडक्शन इंडिगो को वो सरेंडर कर दें एज ए रेंट। ये उनके फार्मर्स और जो ओनर थे, लैंड ओनर, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन तभी एक रिपोर्ट आई कि जर्मन ने आर्टिफिशियल इंडिगो बना लिया है, तो अब ब्रिटिशर्स ये सोच रहे थे कि दे हैव नो नीड टू ग्रो इंडिगो इन द फील्ड्स, तो दे वांटेड टू गेट द फार्मर्स फ्री फ्रॉम दैट एग्रीमेंट। और उसको फ्री करने के लिए उन्होंने फार्मर से 15% का कंपनसेशन मांगा कि हम आप हमें 15% दो क्योंकि हम आपको फ्री कर रहे हैं। तो कुछ तो शेयर क्रॉपर्स ने इस एग्रीमेंट को मान लिया। वैसे तो ये प्रॉब्लम वाला एग्रीमेंट था, इरिक्सम लिखा है, इरिक्सम एग्रीमेंट था, लेकिन कुछ ने मान लिया, कुछ ने अपोज किया। और ऐसा ही राजकुमार शुक्ला था हु अपोज्ड, और वो चाहता था कि गांधी जी हेल्प करें सो दैट ऑल द पीजेंट्स, ऑल द शेयर क्रॉपर हु वर डूइंग इंडिगो शेयर क्रॉपिंग देयर, दे गेट देमसेल्फ फ्री फ्रॉम दिस agreement and they are not required and they should not require to give 15% as a compensation to Britishers. At this point Gandhi ji arrived to Champaran. इस पॉइंट पर गांधी जी चंपारण आए थे और पॉइंट क्या था कि गांधी जी को एक लड़ाई लड़नी थी अंग्रेजों के खिलाफ। ही बिगेन ट्राइंग टू गेट फैक्ट्स, गांधी जी फैक्ट्स इकट्ठा करने लगे। फर्स्ट वो सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के पास गए। सेक्रेटरी ने उनको बताया कि वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा क्योंकि वो आउटसाइडर हैं। नेक्स्ट गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास गए, ट्रूहेड डिवीज़न के, जिसमें चंपारण डिस्ट्रिक्ट है। उसने गांधी जी को बुरा भला कहा। ही बुलीड गांधी जी एंड वाइज फोर्थविथ टू लीव ट्रूहेड, कि वो गांधी जी ट्रूहेड डिवीज़न को छोड़ दे, चले जाए यहाँ से। गांधी जी डिड नॉट लीव, गांधी जी ने नहीं छोड़ा। इंस्टीड ही प्रोसीडेड, बजाय इसके वो मोतिहारी चले गए, ये चंपारण की कैपिटल है। उनके साथ बहुत सारे लॉयर्स भी थे। एट द रेलवे स्टेशन बहुत सारी भीड़ ने उन्हें ग्रीट किया। ही वेंट टू हाउस एंड यूजिंग इट, वो एक घर में गए और उसको अपना हेडक्वार्टर बना दिया और वो कंटिन्यू वहाँ पे रहे। ए रिपोर्ट केम दैट पीजेंट हैड बीन मेल्ट्रीटेड, तभी उनको एक रिपोर्ट आई कि एक पीजेंट को मेल्ट्रीटेड किया गया है पुलिस ने, ब्रिटिश पुलिस ने।
गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो वहाँ पे जाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग वो वहाँ पर गए, हाथी पर बैठकर। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस, वो अधिक दूरी तक नहीं गए थे, तभी एक सुपरिटेंडेंट का मैसेज आया उनके पास टू इस कैरिज। गांधी जी complied. The messenger drove Gandhiji home, where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. Gandhiji signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. उस मैसेंजर ने, सुपरिटेंडेंट के मैसेंजर ने गांधी जी को ये नोटिस दिया कि वो उस एरिया को जल्दी छोड़ दें। गांधी जी ने कंपाइल किया, उसको कंप्लाइड किया, मीन्स उसका उसका फॉलो किया। उन्होंने मैं ये नोटिस ले लिया, उस पर साइन किया, लेकिन लिख दिया कि वो यहाँ से नहीं जाएंगे, वो इस ऑर्डर का डिसओबे करते हैं। गांधी जी रिसीव्ड, तभी गांधी जी को कोर्ट से एक समन मिला। मीन्स जब कोर्ट से कोई नोटिस मिलता है तो उसको समन बोलते हैं। उनको कोर्ट से मिला कि वो कोर्ट में हाजिर हों। ऑल नाइट गांधी जी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात गांधी जागते रहे। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद कि वो आए, राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ करा, कुछ वकीलों के साथ आए वहाँ पर। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, उन्होंने वहीं से आश्रम, साबरमती आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन भेजे। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू वायसराय, और जो इंडिया का वायसराय होता था उन दिनों, उनको भी पूरी रिपोर्ट दे दी। मॉर्निंग में उन्होंने देखा कि मोतीहारी में बहुत सारे किसान आ गए हैं। दे डिड नॉट नो गांधी जी रिकॉर्ड, वो गांधी जी का रिकॉर्ड नहीं जानते थे, साउथ अफ्रीका। दे बैड दे हैड दे बैड मेयरली हर्ड दैट महात्मा गांधी वांटेड टू हेल्प देम टर्बल, वो पीजेंट ये नहीं जानते थे कि गांधी जी जो उनकी सहायता करने के लिए आए हैं अब टर्बल में है, अथॉरिटी ने उनको ट्रबल सम कर दिया है। Their spontaneous demonstration in thousands around the court was beginning of their liberation for fear of the British. बाहर इकट्ठा हुए किसान उनके लिबरेशन के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन करते रहे। इससे क्या हो गया कि ब्रिटिशर्स को अपनी फंक्शनिंग्स में प्रॉब्लम हो गई और वे डरने लगे। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विद, सारे ऑफिशियल अपने आप को पावरलेस महसूस कर रहे थे और वो कुछ नहीं कर रहे थे। उन्होंने गांधी जी से कहा कि फर्स्ट तो आप प्लीज़ कंट्रोल दिस क्राउड and address this crowd, then they will be able to start any functioning of court. He was giving them concrete proof that their might hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by the Indian. गांधी जी ने, तभी गांधी जी ने लोगों को प्रूफ दिखाया कि वो अभी कि वो किस तरह से ब्रिटिशर्स के क्वेश्चंस को फेस कर रहे हैं, और वो एक इंडियन है, उन्होंने ब्रिटिशर्स को चैलेंज किया है। ये सब कहा, उन्होंने दिखाया, जिससे कि जो पीजेंट्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाए। नेक्स्ट पार्ट of the explanation of this chapter you will find in next video.